हेलो गाइस, रजनीश कुमार श्रीवास्तव दिस साइड अगेन पाथफाइंडर क्लासेस। आज की टॉपिक हमारी है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेडियंट पे और ग्रेडियंट के थ्रू डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दो सरफेस के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंगल बिटवीन टू सरफेस हर साल हर जगह आता है, आईआईटी जेम में भी आता है, यूपीएससी मेंस में भी आया हुआ है, अभी लास्ट ईयर आया, लास्ट ईयर आया था। तो दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दैट इज द ग्रेडियंट। तो व्हाट इज द ग्रेडियंट, कैसे डिफाइन करते हैं, और कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स बताएंगे आपको, राइट। तो दिस इज द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, what is geometrical interpretation? Geometrical. Geometrical interpretation of gradient. Right? First, what is gradient? So first gradient. If phi of x, y, z be a scalar point function is defined and differentiable at each point of a certain region of space. If phi of x, y, z be a scalar point function is defined and differentiable at each point of a certain region of space, then gradient of phi denoted by operator phi and is defined as operator phi equal to del by del x I cap plus del by del y j cap plus del by del z k cap phi equal to del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap. Again repeat. If phi of x, y, z be a scalar point function which is defined and differentiable at each point on a certain region of space, then the gradient of phi denoted by operator phi and is defined as operator phi equal to del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap, that means del phi by del x I plus del phi by del y j plus del phi by del z k. This is the gradient and this is the vector quantity. This is the vector quantity. To note, what is note? Gradient is a vector quantity. Gradient is a vector quantity. What is geometrical significance, geometrical interpretation of gradient? Right? So what is geometrical interpretation? Geometrical interpretation. Geometrical meaning of the gradient. What is geometrical meaning? The gradient
at any point P of x, y, z, the gradient at any point P of x, y, z of a scalar point function phi of x, y, z is a vector that is normal to the surface. Normal to the surface या normal to the level surface. Again repeat. The gradient at any point P of x, y, z of a scalar point function phi x, y, z is a vector that is normal to the level surface, that is normal to the level surface of phi x, y, z of phi x, y, z, which passes through the point P of x, y, z. The magnitude of the gradient, is the rate of change of the magnitude of the gradient is the rate of change of phi x, y, z in the direction of normal to the surface at the point P of x, y, z. At the point P of x, y, z. That means the gradient at any point P of x, y, z of a scalar point function phi of x, y, z is a vector that is normal to the level surface of phi x, y, z which passes through the point P x, y, z. And the most important part, the magnitude of the gradient is the rate of change of phi x, y, z in the direction of normal to the level surface at the point this. तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, तो कुछ नहीं करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेडियंट जो फाइंड आउट करना है, इसी को हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव. डायरेक्शनल डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द सरफेस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव. तो अभी हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव बात नहीं कर रहे, अभी ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं. तो ग्रेडियंट मतलब इफ phi of x, y, z be a scalar point function which defined and differentiable at each point on a certain region of space, then the gradient of phi denoted by operator phi and is defined as operator phi equal to del by del x I cap plus del by del y j cap plus del by del z k cap of phi, that is del phi by del x I cap plus del phi by del y j cap plus del phi by del z k cap, and that this directional gradient operator phi
is a vector quantity, so what is geometrical significance, geometrical interpretation of this thing? So that gradient of any point, gradient at any point p of x y z of a scalar point function phi of x y z is a vector, and that is normal to the level surface. That is normal to the level surface, and the magnitude of this gradient is nothing, the rate of change of that is phi of x y z in the direction normal to the level surface. So this is geometrical interpretation. अब इस पे एक ही आर्टिकल दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू आप ग्रेडियंट के लगभग सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एंड दैट आर्टिकल इज वेरी वेरी सिंपल आर्टिकल. तो राइट डाउन द क्वेश्चन, नोट में आप लिखिएगा और आप इसको याद रखिएगा और इसी से आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं. एंड दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज इसका रिजल्ट याद करना आपको बहुत जरूरी है. चाहे आप आईआईटी जैम की बात करें, चाहे आप यूपीएससी मेंस मैथमेटिक्स की बात करें, चाहे आप बीएचयू, चाहे जामा एनी अदर एनी एग्जामिनेशन हायर लेवल मैथमेटिक्स का कोई भी एग्जामिनेशन के लिए, दिस पॉइंट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द फार्मूला, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट, नोट. तो दिस ऑपरेटर, पॉइंट इज ऑपरेटर ऑफ एफ आर इक्वल टू एफ डैश आर आर वेक्टर बाई आर. अगर हमें ये फार्मूला याद है तो आगे ग्रेडियंट का कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, आप इससे निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए. सब्जेक्टिव तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ जो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है. वेयर आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के and mod of r vector equal to under root of x square plus y square plus z. This is the guys. चलिए इसको कौन से बताते हैं आपको, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट. सॉल्यूशन, r vector equal to xi plus yj plus zk, therefore mod of r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दिया भी हुआ है, और अगर नहीं भी दिया होता है तो मॉड ऑफ आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर. एंड दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एंड दिस इंप्लाइज 2r del r by del x equal to 2x. This implies del r by del x equal to x by r. And similarly, del r by del y equal to y by r, and del r by del z equal to z by r. जब भी आपका इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, दिस इज स्टैंडर्ड, जो आपको हर एक क्वेश्चन में लिखना पड़ता ही है, लिखेंगे ही. लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव करते हैं तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप याद रखिए, रिजल्ट आपका काम चल जाएगा. लेकिन अगर सब्जेक्टिव करते हैं तो हर एक क्वेश्चन में ये चीज आपको लिखना ही लिखना है, राइट. अब आपको दिया है ऑपरेटर एफ आर. तो ऑपरेटर एफ आर मीन्स डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड की कैप ऑफ एफ आर. दिस इक्वल टू डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ आर आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ एफ आर जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ एफ आर की कैप. And this is f dash r del r by del x I cap plus f dash r del r by del y j cap plus f dash r del r by del z k cap. And this equal to nothing, f dash r, this is x by r I cap plus f dash r y by r j cap प्लस f dash r z by r k cap. राइट गाइस. और इसको हम लिख सकते हैं नथिंग, दैट इज f dash r बाई r को अगर हम कॉमन कर लें तो ये आपका हो जाएगा दिस इज कॉमन पार्ट, एंड देन x I कैप
plus yj cap plus zk cap, and this is f dash r by r vector, right? So therefore operator fr equal to f dash r इंटू आर वेक्टर बाई आर, इसको आप इधर कर दो, राइट? अब आपका कोई भी क्वेश्चन दिया है ग्रेडियंट का, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो भी फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव लिखना है और आर वेक्टर बाई आर से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट। कुछ नहीं करना है आपको। एफ आर जो भी आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है, स्केलर फंक्शन दिया है, उसको डिफरेंशिएट करना है और आर वेक्टर बाई आर से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज। तो सिंपल, कुछ नहीं, आर वेक्टर दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, mod of r under root of x square plus y square plus z square, because mod of r equal to under root of coefficient of i square plus j square plus k square, and therefore r square equal to x square plus y square plus z square. Differentiate partially with respect to x y z, because r is the function of x y z, then 2r del r by del x equal to 2x. This implies del r by del x equal to x by r. Similarly, we can find out del r by del y equal to y by r and del r by del z equal to z by r. This is standard, that is हर एक क्वेश्चन के अंदर इसको हमें लिखना है, लिखेंगे ही लिखेंगे अगर सब्जेक्टिव में करते हैं तो। एंड नाउ ऑपरेटर एफ आर इक्वल टू ऑपरेटर मतलब डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। एफ आर डिफ्रेंशिएट कर दो एफ आर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड, एंड एफ आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन, एफ डैश आर और आर का डेल आर बाय डेल एक्स एज इट इज फॉर वाई फॉर जेड, एंड डेल आर बाय डेल एक्स, डेल आर बाय डेल वाई, डेल आर बाय डेल जेड जो आपका आया हुआ है दैट इज रिप्लेस बाय एक्स बाय आर, वाई बाय आर, जेड बाय आर। सिंप्लीफाई, टेक कॉमन एफ डैश आर बाय आर एंड देन इन ब्रैकेट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के विच इज आर वेक्टर, सो दिस इक्वल टू एफ डैश आर बाय आर वेक्टर। आप इसको लिखो और इसको आप ऐसे लिख सकते हो एफ डैश आर इंटू आर वेक्टर बाई आर। तो दैट मीन्स अगर कोई भी स्केलर फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो और आर वेक्टर बाई आर से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट, दैट इज आंसर। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल, राइट, व्हाट इज एग्जांपल? इवैल्यूएट ऑपरेटर आर पावर एन, ठीक है। तो अगर शॉर्ट कट में चलते हैं, वेयर आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड आर इक्वल टू मॉड ऑफ आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। अगर प्रोसीजर से करते हैं जैसे मैंने पीछे किया था, जहां जहां एफ आर है उसको आर पावर एन लिख दो, सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला चलते हैं, नोट के थ्रू चलते हैं, जो हमने लिखा है रिजल्ट उसके थ्रू, तो दैट इज एक्सप्लेनेशन। अगर इसको कर देते हैं तो ऑपरेटर आर पावर एन इक्वल टू, कुछ नहीं करना है, आर पावर एन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, तो दैट इज एन आर पावर एन माइनस वन और आर वेक्टर बाई आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मतलब एन आर पावर एन माइनस टू आर वेक्टर। तो ऑपरेटर आर पावर एन इक्वल टू दिस इज, राइट। अब इस दो रिजल्ट से फर्स्ट ऑपरेटर एफ आर इक्वल टू एफ डैश आर आर वेक्टर बाई आर एंड सेकेंड ऑपरेटर आर पावर एन इक्वल टू एन आर पावर एन माइनस टू आर वेक्टर। इस दो रिजल्ट से 90% क्वेश्चन ग्रेडियंट का हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं दैट इज द बेसिक क्वेश्चन, जिसको बेसिक फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट 1 1 1। तो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन जो कि नहीं पूछा जाता है और आप बिल्कुल कर ही लेंगे, उसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन दिस टू रिजल्ट आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब स्पिन न्यूमेरिकल कैसे आएगा और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कैसे हो सकता है? एग्जाम्पल, what example? Evaluate operator r power 5, कुछ नहीं करना है, ऑपरेटर r power n इक्वल टू एन आर पावर n माइनस टू आर वेक्टर, therefore ऑपरेटर r power 5 n इक्वल टू 5, तो 5r पावर 5 माइनस 2r वेक्टर मतलब 5r क्यूब r वेक्टर, दैट इज आंसर, नथिंग एल्स। ऑपरेटर लॉग आर, log r का डिफरेंशिएशन 1 बाई आर देन आर वेक्टर बाई आर, तो दैट इज आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर, नथिंग एल्स।
ठीक है। ऑपरेटर आर स्क्वायर इज नथिंग दैट इज आर स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2r and r vector by r, तो दैट इज 2r वेक्टर। आप ऐसे कर सकते हो, या n इक्वल टू 2, पुट n इक्वल टू 2, तो 2 और 2 माइनस 2 0, तो 2r वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज द ग्रेडियंट। अब अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करना हो, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि नोट पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? ऑपरेटर एफ आर बाई आर फाइंड आउट करना है, ठीक है। इवेल्युएट वेयर आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मेथड से नहीं जाना है, मेथड से नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सिंपल, मेथड से नहीं जाना है। हमें सिंपल एक कॉन्सेप्ट से जाना है कि ऑपरेटर एफ आर बाई आर कुछ नहीं करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करना है। इस फंक्शन को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो आर एफ डैश आर माइनस एफ आर अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर बाई आर, तो मीन्स आर एफ डैश आर माइनस एफ आर अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर, मीन्स एफ डैश आर बाय आर स्क्वायर और माइनस 1 बाई क्यूब एफ आर इंटू आर वेक्टर, राइट? दिस, फॉर एग्जाम्पल, evaluate operator r power n upon log r, इसको फाइंड आउट करना है। तो अगर रिजल्ट याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रिजल्ट नहीं याद है तो सॉल्व कर लेंगे। तो अगर रिजल्ट याद है तो सीधे एफ डैश आर, बड़ी एफ डैश आर, जो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, लॉग आर इंटू आर पावर एन का डेरिवेटिव एन आर पावर एन माइनस 1 माइनस आर पावर एन लॉग आर 1 बाय आर अपॉन लॉग आर का होल स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बाय आर, दिस नथिंग दैट इज एन लॉग आर पावर एन माइनस 1 माइनस आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर लॉग आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, तो दिस इज एन लॉग आर माइनस 1 आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर log r square this and then r vector। और थोड़ा सिंपल कर सकते हैं इसको कर सकते हैं n अपॉन r log r माइनस 1 अपॉन r log r स्क्वायर एंड देन r पावर n माइनस 1 r वेक्टर। तो मतलब गाइज आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो फार्मूला है, दो ट्रिक है, ऑपरेटर एफ आर दैट इज एफ डैश आर आर वेक्टर बाई आर एंड ऑपरेटर आर पावर एन आर पावर एन माइनस 2 आर वेक्टर। कुछ नहीं करना है, ऑपरेटर एफ आर, इस रिजल्ट को याद रखो, एफ आर का डिफरेंशिएट करो एफ डैश आर और आर वेक्टर बाई आर से मल्टीप्लाई करो। तो कोई भी क्वेश्चन अगर ग्रेडियंट का दिया हुआ है और स्केलर फंक्शन है तो कुछ नहीं करना है, उसको डिफरेंशिएट कर दो और आर वेक्टर बाई आर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। और ग्रेडियंट का क्वेश्चन एक तो यूज करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव में, वन टॉपिक है, और नेक्स्ट जो आपका यूज करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बाद जो टॉपिक यूज करते हैं वो आपका डाइवर्जेंस और कर्ल के अंदर ग्रेडियंट का इसी फार्मूला को हम डायरेक्ट यूज करते हैं और यूज करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं गाइज, राइट? दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू।